Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Omar Khan, and I'm back with another guest, another session. And yet again, I'm very excited about today's program because today we are in for a treat because the guest I'm about to introduce is a proud Greenwich alumnus and he's got such a huge international exposure where he has worked in over 12 countries and he's traveled the world. So, in today's session, we're going to hear a lot of stories when it comes to international exploration. So, without any further delay, let me introduce my guest for today. We have with us Mr. Ghulam Ali Talpur. As I said, he's a proud Greenwich alumnus, and let me tell a bit about the wonderful things we've done over the years. He is the current director of Global Business Services EnQuest Scotland, UK. He is also member of Mensa President Rotary Club of Aberdeen, Scotland. He was one of the founder of Isaac Alumni Pakistan. He was also the president Sindh National Youth Council of Pakistan, chairman Supply Chain Forum Oil and Gas UK, member board for Supply Chain and Exports Oil and Gas Authority UK, and also the chairman board of governors Isaac Aberdeen. And before I start the conversation, I would like to mention the countries that he has worked in includes Pakistan, Dubai, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, UK, Norway, Holland, Denmark, and Malaysia. So a very warm welcome to Sir Ali Talpur. Welcome to the show, sir. Hope you're doing well. Thank you, Omar. I'm very well. I hope you are good. I'm absolutely fine, and I'm actually very excited just because you've been working around the globe in so many countries, and we're looking forward for this session where we're going to hear about so many stories when it comes to the practical exposure. So I'm really excited for this session as well. Thank you, Omar. I'm equally excited and really looking forward to it. So first of all, it's an honor to have you, sir. But we know we're all stuck in this COVID situation. How has work and life affected at your end? Gee, Omar, it's been very challenging. I've been working from home for last 3.5 months. I am always over careful when it comes to health, so I've been avoiding going out. Whenever I go, I wear all my gear and protective equipment. It's like as if I'm going to a battle or a war zone. But I've been staying more home. Work-wise has been really challenging because all our work, as you know, my company is into oil and gas, so all our oil and gas production is offshore, which means right in the middle of the sea. So we have to send helicopters, we have to send food, we have to send medicines, especially in lockdown. That can be challenging, spare parts, and to make sure we keep the show running. Whenever anyone has any symptoms of the virus, we always bring the person back very quickly in the helicopter because it's such an environment ke wahan pe in the middle of the sea there is a very small unit together. So if one person gets it, it's very easy for others to catch it very quickly. So it has been challenging, but so far we have been successful, and now things are improving in terms of virus here in the UK. So I hope everything goes well. Inshallah. And since you mentioned that you are very careful when you go out, so I also have a picture of you going out during the COVID situation. So this is Sir Ali when he's going out, and this is what everyone in Pakistan should also follow. Proper gloves, proper gear, mask, even the extra protection shield. So I think that's a wonderful example that you're setting, and I hope that people in Pakistan also adapt something from this. उमर इसमें तो लग रहा है कि आई एम गोइंग टू द कश्मीर बॉर्डर. नहीं बट ये इस वक्त वॉर सिचुएशन से कम नहीं है जो हालात इस वक्त हैं ग्लोबली. मतलब आप देखें इवन द सुपर पावर्स लाइक यूएसए दे इवन दे आर हेल्पलेस. दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू. Over 2.6 million cases over there as well. They don't have the top superpower, they call themselves, and all the top medical facilities, and even they are helpless. So then, developing countries and third world countries like Pakistan and others, I think they don't even stand a chance according to the situation.
No, it is very sad to lose so many lives. So I agree, Umar. I think Pakistan, the message is we all have to be really केयरफुल। वो मैं फेसबुक पे जोक बहुत आते हैं ना, तो उस दिन मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे, पाकिस्तानी दोस्त ने भेजा था जोक के, वो लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तो कुछ पाकिस्तानी बाहर निकल आए थे, वो टीवी वाले ने पूछा आप क्यों निकल आए, उन्होंने कहा हम देखने आए हैं कि कितने लोग बाहर निकले। तो यू हैव टू बी रियली एक्स्ट्रा केयरफुल। ये पाकिस्तान में से हमारे जो पाकिस्तानी बड़े एडवेंचरस लोग हैं, आपको याद होगा कि बीच में ये जो सुनामी और जो सारे आया था, उसका नाम रखा गया था नीलोफर। तो जब हम समुंदर पहुंचे, समुंदर बैन हो गया था कि समुंदर पे कोई जा नहीं सकता, तो पूरी आवाम कराची की समुंदर पे पहुंची भी है। और जब माइक लेके जब मीडिया पहुंचे तो पूछे तो भाई हम तो नीलोफर को देखने आए, समुंदर में उतर के नीलोफर नजर नहीं आ रही। तो सही बात दिस इज द काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर, बट सही at the बात है। same time, this is something very serious, and awareness हमने spread करनी है, लोगों को educate करना है. But at the same time, sir, I would like to talk about your wonderful journey over the years. Starting from your degree from Greenwich University, and then आप दुनिया के हर कोने में गए, जैसे मैंने mention भी किया the countries you have worked in. तो शुरुआत करते हैं आपकी पूरी जर्नी की, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डिग्री पीरियड व्हेन यू स्टेप्ड इनटू ग्रेनिच। तो उस वक्त गुलाम अली तालपुर कैसे थे, क्या माइंडसेट्स थे, और आज माशाल्लाह आफ्टर ऑलमोस्ट 3 decades where you stand and what you are is completely inspirational for all of us. So let's start your journey from the moment you stepped into Greenwich. Yeah, it has been a long journey and a huge development. It has been a transformation, to be honest. Greenwich really was quite an interesting thing from many angles. So one, before coming to Greenwich, I had never studied in Karachi. I always studied in Hyderabad. Hyderabad's obviously, there's nothing good or bad, लेकिन हर जगह का अपना अलग एक एटमॉस्फेयर, अलग कल्चर होता है। कोई कल्चर बुरा या अच्छा नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो वो मेरे लिए काफी डिफरेंट था कराची के कल्चर में आना, वो भी डिफेंस के उसमें। और आपको पता ही है ना, वो जो हम कहते हैं अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, अराउंड बर्गर गर्ल्स एंड बॉयज एंड ऑल दैट, तो that was quite different. The other चीज जो मेरे लिए काफी डिफरेंट थी गर्निश में, वो that was my very first experience of co-education. उससे पहले मैं स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ा वो ऑल बॉयज में पढ़ा, तो मैं वो आधा एक साल तो मैं शर्माता ही रहा। वो लड़की बेचारियों को तो पता भी नहीं चलता था, लेकिन मैं वो शर्मा शर्मा के, क्योंकि मैं आई क्वाइट फेल्ट डिफरेंट। लेकिन jokes aside, it was a transformation and really credit to Kamal साहब and Madam Seema. ग्रीनिच की जो मुझे सबसे अच्छी, मैं अपनी स्टडीज में कभी भी स्कूल वगैरह में मैं टॉप क्लास स्टूडेंट नहीं था। ग्रीनिच में आके आई रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट, और उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान के जो बाकी सिस्टम थे वो बहुत ही वो जो रट्टेबाजी वाली सिस्टम थे, कि आपने एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा लगा लिया और आप गए और आपने मार्क्स ले लिए। ग्रीनिच में ऐसा नहीं था। ग्रीनिच में आपके हर चीज पे थोड़े थोड़े मार्क्स थे, आपकी प्रेजेंटेशन पे, आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट पे, आपकी असाइनमेंट पे, और रट्टे पे तो बिल्कुल ही नहीं थे आखिर में आपको। तो इट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस फॉर मी। इंडीड। तो अब मेंशन जब किया है तो कुछ आपकी वो मोमेंट्स भी शेयर करते हैं। दिस वाज द डिग्री डे जब यू गॉट योर ग्रेजुएशन डिग्री, और बिल्कुल जब ये शेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो सारी फ्लैशबैक्स, वो मेमोरीज वापस आ रही होंगी। आई इवन शेयर द पिक्चर ऑफ योर क्लास। अब आपने बताना है इसमें कौन कौन सा है, क्योंकि हमारे साथ लोग मौजूद होंगे तो डेफिनेटली देख भी रहोगे। सो डू यू रिमेंबर ऑल द नेम्स? मैं तकरीबन सारे तो नहीं, लेकिन काफी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही आई कैन रिमेम्बर। और तो काफी कुछ लोग इसमें से शायद देख भी रहे हो, जी कुछ बिल्कुल। शरारती लोगों की शक्लें भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आसिम मकसूद जो सबसे पीछे खड़े हैं, वो सबसे शरीफ बन के खड़े हैं, वो सबसे शरारती वही थे क्लास में। और बाकी लोग भी वहाँ पे सारे माशाल्लाह, दे आर ऑल इन गुड गुड पोजीशंस, डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल इन देयर करियर्स। इंडीड। और हम बिल्कुल जो आपके साथी हैं, काफ़ी लोग ट्यून्ड इन भी हैं और हमें देखेंगे भी। हम उनको भी ऑफ कोर्स उनके मेंशन करेंगे कमेंट्स। ये एक और पिक्चर शेयर करता हूँ। दिस वाज द लास्ट डे आई बिलीव ऑफ, तो ये कौन सी जगह थी? ये दिस वाज वेरी लास्ट डे जब हम गिरनिच आए थे, और समझे अलविदाई एक वो कर रहे थे। तो ये गिरनिच के पास एक मार्केट जी है, या उस जमाने में तो थी। तो आज उस भी है। जमाने में, हाँ, तो उस वक्त गिरनिच में इतने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और वो अभी नहीं खुली थी, और कोई ज्यादा वो नहीं था। तो अगर अयाशी किसी को करनी होती थी, वो उस मार्केट में जाके दो कोक पी लेता था या कॉफी पी लेता था।
तो वो हम बस वो आप देख रहे हैं, हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वो अच्छे मूड में थे। और समझें बिल्कुल आखिरी एग्जाम था हमारा एमबीए का, और हमने सोचा कि वहाँ चल के थोड़ी गपशप कर लेते हैं। आप देख रहे हैं लोग कैमराएं भी ले आए लाए हुए हैं, तो इट्स अ वेरी व्हाट वाज वेरी मेमोरेबल डे। और हमारा ग्रुप था, अच्छा ग्रुप था और हंसी मजाक का। जी बिल्कुल। और फिर सर, वंस यू गॉट योर डिग्री, तो आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम? मैं फर्स्ट जॉब पाकिस्तान में था, आईबीएम में। आईबीएम कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी। और मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिली थी। तो राइट। 1 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर एक्सटेंड करके 3 महीने की इंटर्नशिप बनी। आईबीएम इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और मेरे ख्याल में आई एम रियली लकी कि मुझे ऐसी इंस्टीट्यूशन से करियर का आगाज़ मिला। uh, कोई चैलेंजिंग, और एक वक्त आया जब आईबीएम में मेरी 3 महीने एक्सटेंड किया, फिर 6 महीने एक्सटेंड किया, तो एक लोकल कंपनी से मुझे, जो छोटी कंपनी थी, उसकी ऑफर आई जिसमें सैलरी भी ज़्यादा थी और समझें टाइटल भी बड़ा ज़बरदस्त था। और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि अब आप जाके पूरी दुनिया डेफिनेटली। फतेह कर लेंगे और बड़े मैनेजर फौरन बन जाएंगे। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आईबीएम छोड़ दूं, लेकिन मेरे अंकल हैं, मेरे मामू, उन्होंने उस वक्त मुझे सही मशवरा दिया। उन्होंने कहा अगर लर्निंग करनी है तुमने तो आईबीएम में कंटिन्यू करो, चाहे सैलरी कम हो जुटे हो। तो मैं, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एडवाइस आई गॉट, बिकॉज आई एंडेड अप वर्किंग फॉर 8 years इन आईबीएम and I really learned a lot in IBM. So it was really a joy to work in a company like IBM. डेफिनेटली। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है, जिसमें मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, कि आप माशाल्लाह इतने डिफरेंट मुल्कों में आपने काम किया। हर जगह का एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट नॉर्म्स हैं, एक डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस है, एंड मोर ओवर एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। इवन अगर आप अपनी कंट्री से कहीं बाहर जाते हैं, आपने तो 12 मुल्कों में काम किया और फिर यू ट्रेवल्ड ओवर 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो क्या रियलाइज किया कि हर मुल्क का कोई डिफरेंट कल्चर है? सो प्लीज शेयर योर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंसेस ओवर द डिफरेंट कंट्रीज। जी, नहीं थैंक यू। मैं आईबीएम के बाद आई केम टू ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो एक कंपनी थी लेज़मो ऑयल, उसको बाद में ईएनआई ने परचेज कर लिया। तो कराची में ही 3 साल मैंने उनके साथ जॉब की। फिर मुझे इंटरनेशनल का बड़ा जुनून था शुरू से ही। जब मैं बच्चा था तो वो सब, हर कोई अपने अपने क्रिकेट टीमों के नाम रखते थे, कोई तालपुर क्रिकेट क्लब, कोई क्या। मैं हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब रखता था। एक समहाउ एक जुनून था। तो मुझे चांस मिला ईरान जाने का। तो शलम्बा जी ने मुझे जॉब दी ईरान में, सप्लाई चेन मैनेजर की। वो मेरी पहली मैनेजर जॉब भी थी। अ, बड़ा मजा आया। ईरान इज वेरी डिफरेंट, वेरी रिच इन कल्चर, लोग बड़े प्यारे। अ, और ईरान की जो स्टोरी है ना, वो आप मीडिया से नहीं पता कर सकते। आप वहाँ अगर जाके रहें, मैं 2 साल रहा, और ईरान ने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी जो डिपेंडेंस अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पे है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। वो हर चीज़ अब खुद बना लेते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे। तो ईरान में बहुत मज़ा आया। उसके बाद आई वेंट टू, शलम्बा जी ने मुझे ट्रांसफ़र किया सेंट्रल एशिया। तो अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ भी बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे मैं आपको थोड़े किस्से सुनाता हूँ। मैं पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं, आप, कोई भी कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता। फ़र्क ये होता है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जी। तुर्कमेनिस्तान में जो, तुर्कमेनिस्तान ऐसी जगह है जहाँ इतने लोग शायद जाते भी नहीं होंगे, और तो मेरे लिए भी काफी नया था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन हुई थी उस वक्त, वो अभी नए नए आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से, तो उन्होंने अपना मुल्क बना लिया था। अच्छा, वहाँ पे कुछ अयाशियाँ तो ज़बरदस्त थी। वहाँ ये था कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ता था उस वक्त। अब आई डोंट नो अब क्या है। आपको वाटर, जो घर यूटिलिटीज आती थी फ्री, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। पेट्रोल, जब भी पाकिस्तान चीख रहा है कि बढ़ा दिए बढ़ा दिए, वहाँ पे पेट्रोल समझे उस वक्त पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर लीटर मिलता था। ईयर की बात कर रहे हैं? ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। नॉट वेरी लॉन्ग अगो। नो राइट। लॉन्ग अगो। अच्छा, लेकिन वहां पे मजेदार ये था कि उनका जो पहला फाउंडर या प्रेसिडेंट जो कह लें, ही वाज क्वाइट अ कैरेक्टर। तो उसने राइट। क्या, वो उसमें उसमें ईगो बड़ा था। उसमें हर चीज में मैं और बड़ी वो एक वो थी। उसने, मैं मजाक में नहीं कह रहा, सी उसने क्या किया, उसने एक वक्त ऐसा, बाकी चीजें सारी उसने की, एक वक्त ऐसा आया, उसने कहा ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये नाम मैं नहीं अडॉप्ट करूंगा। उसने क्या किया कि जनवरी अपने एक बेटे का नाम कर दिया, फरवरी बेटी का नाम कर दिया, अपने खाला का, फुप्पो का, अपने अंकल का, चचा का। अब वो सारे महीने वो कर दिए। अच्छा, फिर उसने कहा कि यार ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है,
वो भी उसने नाम चेंज कर दिया। खैर लोग फॉलो नहीं किया, लोग फिर भी वो जनवरी फरवरी को जबान पे आया हुआ है। फिर उसने कानून पास किया असेंबली से, वो असेंबली उसकी अपनी थी, कानून पास किया, वो कानून बन गया। अब उसमें ये कि कानून बन गया तो घर में तो हर कोई जनवरी फरवरी बोलता था, लेकिन बिजनेस में आप वो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बिजनेस में फिर आप जेल हो जाते, आपको फाइन पड़ जाती। तो जब हम एक दूसरे को ईमेलें करते थे तो मैं सोचने पड़ जाता था, यार अब इसके खालू का नाम क्या है, मैं मुझे क्या पता इसके इसके आंटी का नाम क्या है, वो याद करना पड़ता था। दैट वाज रियली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरा नहीं ख्याल कहीं और दुनिया में ऐसा होगा। राइट। सर आपसे बड़े मजेदार किस्से वाकई सुनेंगे, लेकिन साथ आपके बैचमेट सोहेल अमीन साहब भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं गुड टू सी यू GAT, और कह रहे हैं कि जी इज रियली हैप्पी टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Sohail is a very good friend. Sohail, mashallah, very active at Greenwich. He was very active in the social activities. बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करते थे। अभी भी वो he's mashallah doing well and he's very active in voluntary Rotary clubs और Karachi club. Good to see you, Sohail. इंडीड। तो सर बड़ा आपने मजेदार ये वाकया शेयर किया कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने और ये काम कर दिया कि मंथ्स के नाम चेंज करके अपने रिश्तेदारों के नाम रख दिए। तो अगर कल को किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो जाती तो महीने का नाम फिर चेंज कर देता। हाँ वो चेंज कर देते, वो फिर हुए थे। उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी वो अशकाबाद उनका वो था कैपिटल, तो अशकाबाद में उनको बड़ा शौक था बिल्डिंगें बनाने का। और राइट। बिल्डिंगें वो ऐसी जबरदस्त बनाते थे कि यकीन करें वर्ल्ड क्लास, मतलब यूएस यूके का मुकाबला नहीं है। लेकिन वो उनमें ये था कि वो बनाते थे लेकिन वो बेचते नहीं थे। वो राइट। गवर्नमेंट की बिल्डिंगें वो ऐसी खाली रखते थे। तो उन्होंने एक फिर नया कानून निकाला कि अशकाबाद में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यू हैव टू बी अ डोमिसाइल पर्सन रेजिडेंट ऑफ अशकाबाद। तो उसके राइट। बाद फिर क्या हुआ कि जितनी वो लड़कियां थी, खवातीन थी अशकाबाद की डोमिसाइल थी, उनकी डिमांड बढ़ गई। क्योंकि हर राइट। पूरे तुर्कमेनिस्तान से हर लड़का अशकाबाद की लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए कि उसके नाम शादी हो जाए तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले लूं अशकाबाद में। तो क्या बात काफी ही वाज वेरी वेरी इनोवेटिव पर्सन। मेरे ख्याल में अब तो उनकी डेथ हो गई, अब तो पता नहीं क्या वहाँ पे हाल है, लेकिन वो उनके किस्से किसी दिन अगर आप गूगल पे जाके पढ़ें तो यू विल रियली एंजॉय। नहीं, बिल्कुल बड़ी नई चीजें पता चल रही है, बिकॉज एज यू सेड के काफी लोगों को तुर्कमेनिस्तान का इतना पता नहीं। आप तो वहाँ रहे, एंड नॉट इवन तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तजकिस्तान, कजाकिस्तान, सारी जगह आप रहे। तो ये बताइए, आपने बात की कि उधर की लड़कियों के अंदर लोग इंटरेस्ट होते थे, आप इतने मुल्कों में रहे माशाल्लाह, तो आपका कभी कहीं दिल लगा कि यार ये मुल्क अच्छा है? क्योंकि एक से एक यूरोप में भी रहे, एशिया में भी रहे। अब आप मुझे मरवा दोगे तो दिल दिल तो है ना, काम में इतना वो लगा हुआ था। और फिर उन मुल्कों में लैंग्वेज का भी बड़ा मसला होता था, वो समझ नहीं आती थी काफी जगहों पे। एक तरह से ये तो बड़ी अच्छी बात रहती ना कि अगर आपकी कोई ऐसी बेगम हो जिससे आप कुछ बोले वो ना समझे और वो कुछ बोले तो आप ना समझे, कभी लड़ाई ना हो जिंदगी में। ये वैसे आइडिया अच्छा है, जो अब नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए अच्छा आइडिया है, और आप जैसे यंगस्टर्स के लिए। मैं सर इम्प्लीमेंट करूंगा इसको। जी सर, तो फिर यूरोप के अंदर जब आप मूव हुए, यूरोप में डेनमार्क, हॉलैंड, यूके, एंड नाउ यू लिविंग इन स्कॉटलैंड, so how did you find the difference, in living, in the mentality, in the mindsets, compared Asia to Europe? यार बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं अपने पूरे उसको देखता हूँ जब डिफरेंट कल्चर्स को, अगेन कोई कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता इसमें, ब्रॉडली अगर स्पीकिंग दो तरह के कल्चर होते हैं दुनिया में। एक है डायरेक्ट कल्चर, एक है इनडायरेक्ट कल्चर। अब इनडायरेक्ट कल्चर में ज्यादातर आपकी एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इस तरह के मुल्क आ जाते हैं, चाइना, सिंगापुर, जापान। इनडायरेक्ट कल्चर, डायरेक्ट कल्चर में यूरोपियंस, जर्मनी वगैरह ये आ जाते हैं। अब उसमें Right. बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब आप किसी जर्मन से मीटिंग करोगे बिजनेस, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डायरेक्ट बैठो, हाथ मिलाओ, बैठो और डायरेक्ट बिजनेस की बात करो। Right. और वो नहीं चाहता कि वो कोई इनडायरेक्ट बात है। लेकिन अगर आप किसी जापानीज से मिलके बैठोगे, या किसी पाकिस्तानी के साथ, या किसी इंडोनेशियन के साथ, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप पहले बैठो, उसका हाल पूछो, उसके बच्चों का हाल पूछो, उसकी बीवी का हाल पूछो, उसकी भैंस बकरी का पूछो। अगर आप वही चीजें अगर आप किसी जर्मन बंदे के साथ करेंगे, यार तुम्हारी बीवी कैसी है तुम्हारी, तो वो पागल हो जाएगा कि यार मैं बिजनेस की मीटिंग करने आया हूँ, तुम्हें क्या मकसद है कि मेरे बच्चे कैसे हैं और मेरी भैंस कैसी है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कल्चर में जाओ और सीधा अगर आप जापानीज से मिलो और सीधा सीधा बिजनेस की बात करने लगो, तो वो कहेगा यार ये बंदा तो इंटरेस्टेड ही है मेरे में, ये तो मेरे साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं करा, कोई रिलेशनशिप ही नहीं करा, ये इसके साथ मैं क्या बिजनेस करूंगा।
तो ये राइट। अवेयरनेस जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि इफ यू आर अवेयर अबाउट इंटरनेशनल एंड अब उसके अलावा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ग्रीटिंग्स। हर मुल्क में ना, अब तो कोविड आ गया, हाथ नहीं मिला सकते और दूसरे आप वो कर लो, लेकिन उस जमाने में ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग इन एवरी कल्चर। अब मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान में तो होता है ना कि आप हाथ मिला लो, और खवातीन से तो अब हाथ भी नहीं मिलाते, उनको दूर से ही सलाम दुआ हो जाती है। अच्छा, मैं फिर पहले पहले दफा जब मैं गया बिजनेस के काम से फ्रांस गया था मैं कुछ अरसे के लिए, तो वहाँ लिटरली मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुई। क्योंकि वहाँ ये होता है कि वहाँ उनकी ग्रीटिंग, और ये मतलब अच्छी बात है, ग्रीटिंग समझी जाती है कि हर मर्द से आप हाथ मिलाएं, हर औरत से आप जाके वो किस नहीं होती लेकिन एक फेस वो करते हैं किस का। अब मुझे वो आदत ही नहीं थी, मुझे वो, मैं तो बड़ा घबरा जाता था, तो शुरू में तो मैंने, वो ऐसे बढ़ती थी मैं थोड़ा ऐसे घबरा जाता था। फिर वो मैंने उनके फेस पे नोट किया, वो समझती हैं यार ये तो ही हेट्स अस, और ये तो बात ही नहीं करता, और ये तो बहुत ही बुरा आदमी है, और ये तो नफरत करता है। तो मैंने आस्ता आस्ता करके वो आदत अपनी बना ली, तो खैर वहां तो मेरी आदत बन गई। फिर लेकिन मैं, यहाँ आके मसला अगर, हो गया, यहाँ आके मसला हो गया फिर। नहीं नहीं वहां नहीं, फिर मुझे जो मेरी वहां तो बन गई, लेकिन फिर जब मैं अजरबैजान काजाकिस्तान गया, तो उनका वो दूसरा सिस्टम है। उनका सिस्टम ये कि आप लड़कियों से तो हाथ, औरतों से तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन वहां मर्दों को आपको जो है ना किस करनी पड़ती है। ओके। अच्छा, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो वो ज्यादा मुश्किल था। आई एम नॉट यूज टू कि मैं उसको वो मर्दों को पप्पी कर रहा हूँ और किस कर रहा हूँ और गाल मिला रहा हूँ, आई नेवर। वो आखिर तक यकीन करें मुझे आई कुडंट। तो अभी जो कोविड आया तो ये हुआ कि यार हाथ ना मिलाओ, मैंने कहा यार ये, अगर मैं ये काम अजरबैजान और काजाकिस्तान में उस वक्त कोविड आता तो मेरी तो जान बच जाती। लेकिन अब वो अगर ना करो तो बैड मैनर्स हो जाता है, वो कहते हैं यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारे साथ दोस्ती करने में, ये बिजनेस क्या करेगा हमारे साथ। तो आपका ये तो बड़ा अच्छी बात आज आपने की, और हमारे जितने व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप कभी कहीं भी किसी मुल्क में जाएं, सबसे पहले आप उधर का कल्चर, उधर के नॉर्म्स, उधर की वो चीज़ें जिससे वो ऑफेंड हो जाते हैं, ये समझें, ये सीखें। मुझे खुद बड़ा पैशन है ट्रैवलिंग का, और मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं जिस भी मुल्क में जाऊं तो मैं उनका जो लोकल खाना है, जो उनका लोकल ड्रेस है, और जो उनका लोकल बिहेवियर है, वो समझूं और अडेप्ट करूं, दैट कम्युनिकेट करने में, और खासतौर पे आपने जहाँ मेंशन किया बिजनेस करने में, बड़ा आसान हो जाता है और इट्स वेरी इजी। तो आपने कल्चर अडेप्टेशन की बात की, एक पिक्चर आपकी मेरे पास है, ये थोड़ा सा लाइट डालेंगे। आई बिलीव दिस इज जापान एंड दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। जी जी, एक किमोनो ड्रेस है। तो मैं वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक था कि अपनी अपनी ड्रेस पहनो, तो मैंने शलवार कमीज और वो पहनी, तो एक जापानीज वहाँ दोस्त था, उसको पसंद आ गई, तो उसने कहा यार हम एक्सचेंज करते हैं, तुम एक अपनी शलवार कमीज मुझे दे दो, मैं अपना किमोनो तुम्हें दे देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। इट वाज रियली रियली नाइस ऑफ हिम। इंडीड। तो सर, इतना माशाल्लाह आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा, और हर दफा एक डिफरेंट कंट्री, दैट मींस अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नॉर्म्स। तो बहुत से और इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे, कुछ यादगार मेमोरीज होंगी। सो कुछ इंटरेस्टिंग वाकयात अगर आप हमारे साथ शेयर करें, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जी जी, तो ट्रैवलिंग में मैं नॉर्वे में भी मैंने काम किया, और अगर आप मुझसे पूछें कि यार सबसे ज्यादा मजा कहाँ है, तो मुझे नॉर्वे में सबसे ज्यादा मजा है। एक तो नॉर्वे खूबसूरत बहुत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है, वो उसकी सीनरी जो है वो फ्योर्ड जो उनके हैं ब्रेथ टेकिंग और निहायत ही खूबसूरत। अच्छा, वहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं, एक तो बहुत ऑनेस्ट, बहुत सीधे साधे भोले, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंडली। फिर ये कि वहाँ मैंने इतनी नई चीजें देखी कि मैं हैरान हो गया। अब जैसे एक शहर है वहाँ बर्गन, वहां पे मैंने पहली दफा जिंदगी में नॉर्दर्न लाइट्स देखी। नॉर्दर्न लाइट्स, वो जब आसमान पे ब्यूटीफुल। कलर्स आते हैं, और शुरू में तो पहली दफा देखो अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो आप घबरा भी जाते हो कि यार ये आसमान आज ग्रीन और पिंक क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आती। दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर एक दफा मैं वो गया हुआ था, उनका एक काफी नॉर्थ में है गांव का नाम वो क्रिस्टियनसन। क्रिस्टियनसन पे हमारी एक बेस होती थी शाम बजे की, तो वहां जाना हुआ। क्रिस्टियनसन इतना नॉर्थ में है कि वो रात को 12 बजे भी वहां सूरज निकला हुआ होता है, और वो मुश्किल से 12:30 बजे जाता है, फिर 1 बजे सूरज निकल आता है। तो वहां पे सोना बड़ा मुश्किल हो गया था कि यार बंदा सोए कैसे, ये तो सूरज ही नहीं जाता। फिर एक दफा मैं स्टेवेंगर में था। स्टेवेंगर में वहां पे बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है, वहां ये कि वो गाड़ियां और वो नहीं, वो साइकिल और वॉक ज्यादा करते हैं। तो होटल में ठहरा हुआ था, तो वहां से ऑफिस जाते थे
तो वो कोई 15-20 मिनट की वॉक थी। अब मैं वो थोड़ा पहाड़ी इलाका भी था, तो मैं थोड़ा थक भी जाता था, अवॉइड भी करता था। जो वहाँ जो मेरा लोकल दोस्त था, उसने कहा यार, जब नेक्स्ट टाइम मैं गया तो उसने कहा यार आज मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो यार, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो वो हमारे रास्ते में एक लेक आता था, बहुत ही खूबसूरत। जब होटल से ऑफिस के बड़ा खूबसूरत सीन था, लेक आता था। वो मुझे ले गया, कहता है आज हम लेक से चलेंगे। मैं कहा यार पागल हो गए हो, लेक से? कहते नहीं नहीं, ये तो जमी हुई है, फ्रीज हुई हुई है। मैंने कहा नहीं ओके। यार, मैं इसमें मैं नहीं वॉक करूंगा, ये तो टूट जाएगी, मैं तो गिर जाऊंगा, ये तो फ्रीज व्रीज क्या होगी। कहता है यार नहीं भाई, ये अब 6 महीने के लिए गई, ये तो फ्रीज हो गई, ये नहीं। इतने में भी मैं उसे बहस ही कर रहा था, तो साइड से हमारे एक साइकिल पे बंदा गुजरा, वो साइकिल चलाता हुआ पूरी लेक से गुजर गया। मैंने कहा यार, कहता है वो देखो यार, वो साइकिल समय चला गया। तो फिर मैं अल्लाह अल्लाह करके वो लेक से गुजरा। वो बड़ी फ्रोजन लेक थी, वो पूरा लेक से गुजर गए। वो 6 महीने तक सुना है वो फ्रोजन। लेकिन वहां की जो बिजनेस की चीजें थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। राइट। एक तो शुरू में जो मैंने नोट किया, उनका जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो जो हम सुनते हैं ना कि यार करप्शन नहीं है इस मुल्क में, करप्शन जीरो है, ये है। तो मैंने शुरू में देखा वहां एक रूल है। वहां रूल ये है कि हर बंदे की वो एक आईडी है, और वो उस आईडी को नाम डालें उस बंदे का आप एक वेबसाइट पे, और कंपनी का नाम डालें, तो उसकी आप हर कोई पूरी वो उसकी सैलरी, पूरी उसका टैक्स सब देख सकता है। तो मैं वहां बैठ के मैं अपनी मैनेजर की सैलरी, उसकी अर्निंग, उसकी इनकम, अच्छा मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था यार, ये मेरी टीम वाले मेरी सैलरी और वो सब देख रहे हैं शुरू शुरू में, जो है वो पाकिस्तान। लेकिन बाद में मुझे हुआ कि यार ये तो बेस्ट है। बेस्ट इसलिए कि वहां पे फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि यार ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये इसको फेवर कर रहा है, ये उसको फेवर कर, उसकी सैलरी ज्यादा है, मेरी सैलरी कम है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन यार इट्स अमेजिंग। तो एक चीज जो मैं आई रियली, मतलब मेरे लिए वाज आई ओपनिंग। तो वहां पे मैं, मेरी टीम में एक खातून थी, वो मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा ये फॉर्म फिल करो। तो मैंने कहा साइन कर दो फॉर्म। मैं मैनेजर था उसका। तो मैंने कहा ये क्या है? कहती वो मेरी मेटर्निटी लीव है। तो मैंने कहा 12 महीने तुम लीव पे जा रही हो मेटर्निटी? कहती हाँ, यहाँ 12 महीने मिलती है। खैर, और बाहर वहां पे ये है कि चूंकि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो लोग इनकरेज करते हैं कि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरियां और ये वो उनको हम दें, बच्चे पैदा करें, ये वो। तो वहां पे मैं फिर एचआर के पास गया। मैंने कहा यार 12 महीने ये छुट्टी पे जाएगी, 12 महीने कंपनी सैलरी देगी? तो उसने कहा यार ये नॉर्मल है, ये तो है, और कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा ये सर चलो ठीक है। नॉर्वे की बात बता रहे हैं? नॉर्वे की बात बता रहा हूँ। तो मैंने वो साइन कर लिया। अच्छा कुछ महीनों बाद एक लड़का आया, वो भी मेरी डिपार्टमेंट में काम करता है। उसने कहा कि ये, मैंने कहा ये क्या है? कहता है साइन करो। कहता है ये मेरी पेटर्निटी लीव है। तो मैंने कहा यार पेटर्निटी लीव? कहता है हाँ, वो मेरी बीवी बच्चा पैदा कर रही है। तो भैया तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा करिए, तुम वो 4 महीने की पेटर्निटी लीव वहां होती है, और 4 महीने की सैलरी उसको घर बैठे मिलेगी। तो क्या बात। मैं काफी हैरान हुआ, और ये हुआ। तो फिर मुझे बाद में मैंने पढ़ा, तो रिसर्च है कि जब नया बच्चा पैदा होता है, तो जो पहले 4 महीने होते हैं वो बेस्ट होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो वो उन्होंने 4 महीने, लेकिन मजे की बात बताऊं तो वो मुझे शक्ल देख रहे थे कि यार ये इतना हैरान क्यों हो रहा है, इसमें अजीब बात क्या है? तो उन्होंने वो मुझसे पूछा कि यार ये तो हो गया हमारा, थैंक यू तुमने फॉर्म साइन किया है, ये बताओ पाकिस्तान में कितनी मेटर्निटी लीव और पेटर्निटी लीव मिलती है? मैंने कहा यार खुदा को मानो, अगर पाकिस्तान में हम एक एक साल की छुट्टी दे दें और एक एक साल की सैलरी दे दें और पैसे दे दें, ये तो यार फिर तो। और मुल्क की बात तो 220 मिलियन की पॉपुलेशन है एंड स्टिल काउंटिंग। और इस कोविड के टाइम पीरियड में माशाल्लाह कितनी आबादी बढ़ी होगी, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट सर आई विल इंक्लूड सम कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस बिकॉज इतने हम इंटरेस्टिंग वाकयात शेयर कर रहे हैं, तो काफी लोग हैं हमारे साथ मौजूद। और हमारे एक और प्राउड अलमनस हमारे शो पे भी थे, सर नौफिल मूसा हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं साईं सलाम। तो काफी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। एहसन वालेकुम मोहम्मद सलाम हमारे साथ नौफल। मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रियली इंटरेस्टिंग बातें सर बयान कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे लोगों का नॉर्वे की जो बातें हैं वो सुन के इंटरेस्ट और डेवलप हो गया होगा कि जी नॉर्वे आने के लिए मोटिवेशन काफी बढ़ गई है। राना साइमा कमर हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं शेयर योर टर्की एक्सपीरियंस। टर्की में मैं काम तो नहीं किया, लेकिन टर्की में मैंने विजिट किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। टर्की में इस्तांबुल जो है, वो उसकी खूबी ये है कि वो एक आधा शहर एशिया में, आधा शहर यूरोप में, वो बीच में एक समंदर है। तो वो और काफी कंट्रास्टिंग है। लोग वहाँ के बहुत, पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत वो उनके दिल में प्यार है। बिल्कुल। और टर्की के लोग माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है। तो लेकिन आई हैव नेवर वर्कड इन टर्की, इट वाज मोर अ हॉलीडे। लेकिन मैं गया था, बहुत सर्दी थी, तो वो
पूरा ही ट्रैवलिंग इंसान फ्रीज हो गया था। क्योंकि टर्की की वैसे अगर देखें तो जितना वो रिच इन कल्चर है उनकी हिस्ट्री भी उतनी डीप जाती है, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, और आजकल बड़ी सीरीज भी पाकिस्तान में चल रही है जिसने और यू नो टर्की की हिस्ट्री को लोगों के दिल में और जगाया है। एंड सही एज यू बात। सेड कि मोहब्बत वहाँ बड़ी है कि आप वहाँ जाके सिर्फ बता दें मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो आगे से जो पहली चीज बोलते हैं वो बोलते हैं करदाशतन, तो भाई सही बोलते हैं बात। हमें पाकिस्तानियों को। और ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मजीद मैसेजेस को शामिल करते हैं। वी हैव विद अस काजिम मकसूद, कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बीइंग Yeah. शेयर्ड बाय तालपुर साईं। ये मुझे वो साईं कहते थे, काजिम काजिम। और कल मैं नौफल का इंटरव्यू सुन रहा था, जबरदस्त इंटरव्यू किया, और मैं यही आपको बोलूंगा कि आपने तो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकवा दी कल। तो आज तो मैं अपनी कंपनी को बोल के आया हूँ, वो हम ऑयल में डील करते हैं, मैं कहूँगा यार आज उमर जो है ना हमारा सारा ऑयल भी बिकवा देगा। बिल्कुल तो सर, मिल के, मैं तो कहता हूँ मिल के तेल और भी एक्सप्लोर करते हैं सारा। कहते हैं ना, एक बड़ी मूवी का डायलॉग मशहूर था कि हमें क्या करना है, हमने तो सिर्फ पानी निकालना है। ये डायलॉग था एक मूवी का, राइट। मजीद मैसेजेस हम शामिल करते हैं। एक और आपके बैचमेट देख के आपको खुशी होगी, अदनान असरार सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं गुड टू सी यू अली एंड उमर। सो सर, क्या जी। था, लग रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में और पुराने बैचमेट्स आ रहे हैं, एक रीयूनियन सा हो रहा है इस लाइव सेशन में। सो या हाउ डू आपको क्रेडिट जाता है उमर, ये जबरदस्त आपका आइडिया है ऑनेस्टली, जोक असाइड, लेकिन व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, और आप इसको कर भी इतना खूबसूरत रहे हो, तो आपको क्रेडिट जाता है इसका। थैंक यू सो मच सर। अब थोड़ी सी और मजीद बात करते हैं। आपने शुरू में मेंशन किया कि आप एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्यूडलिज्म है हमेशा से, काम से ज्यादा जमींदारी की, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा एंड यू वर द फर्स्ट वन हु वेंट टुवर्ड्स अ जॉब और सारी चीजें रही। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जाहिर है काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से बचपन से मिलना जुलना होगा। एक मेरे पास बड़ी पिक्चर भी है फ्रॉम द वर्ल्ड, आपने बताना है कौन सा ईयर है। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं और आप उनकी गोद में मौजूद हैं। ये कब की पिक्चर है और ये क्या वाकया था? ये अर्ली 70s की पिक्चर है। वो हमारे गांव आए हुए थे, मेरे अंकल्स उस वक्त इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तो वो गांव आए हुए थे। मैं उस वक्त इतना छोटा था, मुझे नहीं पता भाई वीआईपी और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, तो मैं तो जाके उसके सामने खड़ा हो गया कि तस्वीर बनवा लूं, लेकिन ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी। इंडीड ही वाज। और एक और मेरे पास तस्वीर है, ये हमारे खान साहब जो कि उस वक्त हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड और अब करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये पिक्चर कब की है, इफ यू कैन रिमेंबर द ईयर? ये 1980s की है, मेरे ख्याल में जब वेस्ट इंडीज टूर पे आया हुआ था पाकिस्तान। तो ये पीसी होटल है, तो मुझे बड़ा शौक था पाकिस्तान, अभी भी मेरे बड़ा शौक है पाकिस्तानी, पैशन है क्रिकेट का, हर वक्त ही क्रेज है जिस तरह मोस्टली हमको होता है। तो वहाँ पे पीसी होटल में इनसे मुलाकात हुई थी कराची में। आपने पैशन का जिक्र किया, तो अभी वर्ल्ड कप हाल में इंग्लैंड में भी हुआ और इंग्लैंड में अक्सर पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। अभी भी इनफैक्ट इंग्लैंड के रास्ते में पाकिस्तान टीम है। एक ये पिक्चर आपकी, ये गालिबन स्टेडियम की है। तो ये कौन सा इवेंट था? आप माशाल्लाह फुल पैट्रियोटिक। ये ये मैं आपको किससे बताता हूँ, ये भी ट्रेवल से रिलेटेड मजेदार है, लेकिन उससे पहले ये बताऊं, ये मेरा फोन बजना शुरू हो गया है। उमर, आपने तस्वीरें दिखाई कि दो दो प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो मौलाना फजल रहमान फोन कर रहे हैं कि यार जिसके साथ तुम तस्वीर बनाते हो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो मेरे साथ कब तस्वीर बना रहे हो। नहीं, ये ट्रैवल की बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरी पाकिस्तान टीम, वो पैशन तो क्रिकेट का है। ये हुआ ये था कि पिछले साल मैं बिजनेस ट्रिप पे था, इंग्लैंड में ही था। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से पहले आई थी, वो जी। एक सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी, फिर यहीं रह गई थी। तो मैं इतफाक से मैं होटल में मैंने चेक इन किया, और मैं भी चेक इन ही कर रहा था रिसेप्शन पे कि वो सरफराज अहमद वहां से आने लगा, वहां से जुनेद आने लगा, और सारी, तो मुझे पता चला पाकिस्तानी टीम उसी होटल में ठहरी हुई है। तो राइट। वो 3 दिन में वहां था, और यकीन करें उन 3 दिन में काफी उनसे गपशप हुई। वो ब्रेकफास्ट पे भी साथ, वो वहाँ वीआईपी कल्चर नहीं होता, सब साथ खाना खाते हैं, और वो ऐसे ही। लॉबी में भी मैंने उनको, अब यकीन करो 3 दिन में जो मैंने उनका दिमाग खाया ना, मैंने जो उनको टिप्स दी, और बड़े शरीफ बच्चे हैं वैसे, बहुत ही शरीफ लड़के हैं, मैंने उनको तुम ऐसे करो, तुम ऐसे खेलो, तुम ऐसे खेलो। मेरा ख्याल में 3 दिन में वक्त ऐसा आ गया था कि वो मुझे शायद कहने वाले थे कि यार हम घर बैठ जाते हैं, तुम ही जाके खेल लो। आपने लेकिन तो मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ। जी ये जी सरफराज अहमद के साथ आपकी जी। पिक्चर, और ये पिक्चर शाहीन शाह अच्छा। अफरीदी के साथ। और वो आपका पैशन ना नजर आ रहा है कि जो एक्साइटमेंट है हफीज के साथ पिक्चर। तो ये खास कोई पोज आपने बताया था कि जी हाथ मिलाते हुए पिक्चर खींचेंगे? क्योंकि देखिए यासिर शाह हमारे साथ, ये आपकी, ये जुनेद खान नहीं, भी मैं है।
नहीं, मैं एक्साइटेड हो गया इनको देख के। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं मेरी होटल में ठहरे हुए होंगे, और ये ये यंग हैदराबाद से हैं, हसनैन। ये ये यंग हैदराबाद हस्लैंड से हैं, हसनैन ये हैदराबाद से हैं। ये वेरी वेरी शाहीन शाह अफरीदी इज अ ग्रेट पर्सन है यार। जी। ही इज सच अ डाउन टू अर्थ। फहीम अशरफ जी, और ये रमीज राजा रैम्बो। र- रमीज राजा अपने दौर में जो है ना मेरे फेवरेट क्रिकेटर होते थे। तो बड़ा ये भी मेरी तरह बहुत बातें बोलते हैं। ये बातों नहीं बहुत है, आपने सुना ही होगा कमेंट्री में। तो इनसे भी अच्छी खासी गपशप हुई, लेकिन बहुत मजा आया। मैं बता रहा हूँ, इतनी मैंने टिप्स दी कि वो परेशान हो गए कि यार अब हम घर बैठ जाते हैं, इसको भेज देते हैं खेलने के लिए। जी बिल्कुल। और रमीज राजा की एक और चीज ये कि किशोर के बड़े फैन थे अच्छा, अपने ये मुझे नहीं टाइम। पता था। ये अच्छा। किशोर के बड़े फैन थे, और ऐसे फैन के जब ये इंडिया के टूर पे गए तो खास इन्होंने रिक्वेस्ट करके किशोर दा से अपनी उनकी जिंदगी में मुलाकात भी की। तो ये बिल्कुल आपके साथ शेयर करें। अब जो मैसेजेस हैं उनकी तादाद काफी बढ़ती जा रही है। सो मैं मैसेजेस आपको देख। उससे पहले जरा ये आपने बस सियासी खानदान और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके थोड़ा मैं एक एक दो बात कर लूं। श्योर तो सर। मैं मेरे मुझसे पहले किसी ने भी मेरी फैमिली में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं थे। वो सब या तो जमींदारी या सियासत। अब मेरे बाद वो मेरी सिस्टर भी जॉब करती हैं, मेरे कुछ कजन्स भी जॉब करते हैं, लेकिन मेरे से पहले नहीं। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरा जमींदारी छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने का सबसे कम क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि इसमें बाकी सबका क्रेडिट है। अब जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे ख्याल में शायद मैंने आंखें भी आधी खोली होंगी आधी नहीं खोली होंगी, कि मेरी अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम बड़े होगे डॉक्टर बनोगे, तुम बड़े होगे डॉक्टर बनोगे। फिर मैं अपना, उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ होता नहीं था। फिर मैं अपनी फूफियों के साथ रहता था। वेरी इंस्पिरेशनल। उन्होंने शुरू से ही मुझे कहना बोल दिया, यार तुम जो है ना वो बड़े होके कुछ प्रोफेशनल बनोगे, तुम किसी, मेरे दादा का भी नाम है तो उनके फादर का नाम है तो बड़ा वो, यहाँ तक कि वो मेरी वो हमारे उसमें एक दाई होती है जो पालती हैं, तो वो जी। भी हर वक्त मुझे। तो मैं एक दिन, मुझे याद है, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मैं कहा यार राइट। छोड़ो सोने दो। वो मुझे उठा के तैयार करके स्कूल भेजी थी, और छोटा बच्चा ही था 6 साल का। तो वो कह रही है उठो स्कूल नहीं जाओगे। मैं कहा यार आज छोड़ दो। नहीं नहीं, स्कूल नहीं जाओगे तुम डॉक्टर कैसे बनोगे। तो मैं तो यार 6 साल का बंदा जब पूरा दिन यही सुने कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, एक तो कहता था यार मुझे बड़ा तो होने दो पहले। दूसरा मैंने कहा अच्छा मैं अगर डॉक्टर बन गया तो सबसे पहले मैं इंजेक्शन तुम्हें ही लगाऊंगा। और मेरी तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे इंजेक्शन लगाना, लेकिन जो है वो इंस्पिरेशन मेरी अम्मी। मैं सोचता था यार ये मेरी अम्मी डॉक्टर डॉक्टर क्यों कहती है, ये डॉक्टर तो बड़ा बुरा आदमी है, ये तो आके मुझे इंजेक्शन लगाता है, ये तो वैक्सीन लगाता है, ये तो दर्द करता है, ये डॉक्टर डॉक्टर। क्रेडिट जो है ना सारा, ये तो इंस्पिरेशनल के पूरी फैमिली रियली सपोर्टेड कि मैं वो, तो बस फिर उस तरह आ गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन ऑनेस्टली बड़ा मजा आया एंड वेरी लकी, वेरी लकी। इंडीड। और सर जितने यंगस्टर्स हैं जो आप फ्यूचर में पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कहीं इंटरनेशनल सेटल होने के लिए, तो उनको आप करियर वाइज क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से पाकिस्तान के बाहर सेटल हो सकते हैं, व्हाट रूट और व्हाट पाथ शुड दे फॉलो? ये मैं तीन उनको बोलूंगा। एक तो है कि सेल्फ बिलीफ से, राइट। अपने अपने उस पर भरोसा। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं आईबीएम गया पहले दिन, मेरी निसार मेमन साहब उस वक्त आईबीएम के वो हेड थे। तो वो उन्होंने अपने कमरे में बुलाया मुझे और बिठाया। मैंने कहा ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। वो उस वक्त पता नहीं कैसे मूड में थे। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, और मैं, मेरे करियर पर उनका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है। उन्होंने मुझे बैठ के ना जो बड़ी ब्लंट बातें की, उसने कहा देखो तुम, मुझे पता है तुम अच्छी फैमिली से हो और फलां ढींगा, लेकिन एक बात बताऊं, इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ना तुम्हें चाचा काम आएगा, ना मामा काम आएगा, ना भाई काम आएगा, ना वालिद काम आएगा। तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा मिलेगा मिलेगा। मेहनत करोगे वरना कुछ नहीं है यार। वो मैंने दिल पे महसूस लिया। मैंने कहा यार मुझे तो सेल्फ बिलीफ जो है ना आपका अपना, कि मुझे करना है, ये नहीं कि यार उस पे मैं कसूर डालूं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने नौकरी नहीं दी, उसने सैलरी नहीं दी। तो सेल्फ बिलीफ और दूसरों पे ब्लेम नहीं करना। दूसरा, मैं जो मैंने मेरे उसमें रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है। अगर आप जाना, इट्स नॉट इजी। आप जाके, मैं काजाकिस्तान में, मेरे याद है मैं जब गया तो बाहर जो है वो -37 डिग्रीज था अपना टेम्परेचर, इतनी सर्दी थी। और अंदर जो है वो उनका खाना इतना ब्लैंड होता है कि वो नमक भी नहीं डालते। तो मैंने पता नहीं कैसे वो खाना खाया, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं सकता था -37 में भी जाके मैकडोनल्ड खरीद लूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा जरूरी है। थर्ड ये कि यार बी बॉर्डरलेस। आप बियॉन्ड बॉर्डर सोचो। आप ये ना सोचो कि मैं कराची में क्या जॉब ढूंढूं, पाकिस्तान में क्या जॉब ढूंढूं। और आजकल के वक्त में ये सोशल मीडिया और ये वो
सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा उमर, ये जो हमारे गांव के हैं बच्चे हैं छोटे जो काम करते हैं, द वर्ल्ड इज योर्स, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपने आप को बॉक्स ना करो किसी बिल्कुल। किसी एक जगह पे, और जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज योर्स। सब ब्यूटीफुल एडवाइस, क्योंकि इंसान खुद अपने आप को लिमिट करता है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये इतनी बड़ी दुनिया है और हम अगर एक सर्टेन जगह पे रहते हैं हम उसके बियॉन्ड देखते ही नहीं। और जैसे आपने कहा बियॉन्ड बॉर्डर सोचें, तो जैसे आपने बताया कि आप जब जिस नए मुल्क में जाते हैं तो आपने नई चीज सीखी, आपकी और एक्सपोजर बढ़ा कि यार दुनिया में ये चीजें भी होती हैं। जिस तरह आपने शेयर किया कि कहीं कुछ कल्चर होता है, तो इस तरह की और बड़ी चीजें कि हमारे वहाँ इस चीज को गुड समझा जाता है। बहुत से कल्चर हैं जहाँ ये बहुत बुरा समझा जाता है। ये जबरदस्त बात की आपने। ये यूके में तो ये थम्स अप बेहतरीन है। ईरान में जो है ना, ईरान में ये दिखाने का मकसद होता है आप कोई और उंगली दिखा रहे हो जो मैं अभी जी नहीं दिखा बिल्कुल। सकता। तो जी बिल्कुल। वहां पे जो दो तीन वाकये हुए ना, दैट वाज फन। और मुझे वो फिर बाद में पता चला कि यार वो इसको समझते हैं कि आप कोई और उंगली दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पे तो हम नहीं दिखा तो सकते। ऐसा कोई मसला तो नहीं हो गया कभी, क्योंकि जब आप डिफरेंट कंट्री में जाते हैं कल्चरल डिफरेंस होता है, तो कहीं किसी मुसीबत में आ गए हो किसी गलत इशारे की वजह से कभी? नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई मसला मत, क्योंकि हमारा होता ये था कि श्लमबर्गर इतनी अच्छी कंपनी थी कि हमें बुकलेट देती थी। वो अब राइट। मुझे पता है ना कि यार तुम्हें हम ट्रांसफर कर रहे हैं नॉर्वे, तो इससे पहले कि मैं नॉर्वे में पहुंचूं वो मुझे एक छोटी किताब देती थी जिसमें होता था कल्चरल, ये सेंसिटिविटी, ये करना, ये ना करना, ये करना, ये। अब जैसे बाकू में, मैं ईरान में था, तो ईरान में ये था कि जितनी खवातीन थी तो वो पर्दा और बुर्का वो सब पहनती थी, और मर्दों के लिए फ्री था, वो जो भी कपड़े पहन लें। बाकू में उलट था। बाकू में ये था कि औरत जो है वो कितने भी छोटे कपड़े और मिनी स्कर्ट पहने, वो कल्चर था, वो बुरा अच्छा नहीं। लेकिन मर्द वहां पे जो भी अगर शॉर्ट में बाहर निकले ना, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो उसको बड़ा नेगेटिव और बुरा मर्द समझते थे। तो ये अच्छा। छोटी छोटी चीजें वो श्लम जो वो किताब हमें देती थी कि यार ये पढ़ लो। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि खाने पे बातें काफी हुई, खाने में तो काफी हुआ था। एक दफा आई डोंट नो मैं कहाँ पे था, तो मैं अक्सर फिश और वेजिटेबल से गुजारा करता हूँ, तो एक दिन वो भूख ज्यादा लगी होगी या जो भी था, मैंने कहा यार आज थोड़ा चिकन चिकन खा लेते हैं। तो राइट। उसमें मेन्यू में लिखा था माउंटेन चिकन। अब वो मुल्क पता नहीं कौन सा था, लिखा था माउंटेन चिकन, तो मैंने वो माउंटेन चिकन ऑर्डर कर दिया। तो मेरे साथ लोकल था वहाँ का दोस्त ऑफिस का, तो उसने कहा तुमने क्या ऑर्डर किया है? मैंने कहा माउंटेन चिकन। कहते अच्छा माउंटेन चिकन क्या है? मैंने कहा चिकन है। कहते नहीं नहीं यार तुम्हें पता है। मैंने कहा भाई अब मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है, होगी कोई चिकन की नस्ल मैं तो खा जाऊं। कहते हैं नहीं यार, यहाँ माउंटेन चिकन जो है वो फ्रॉक को कहते हैं, मेंढक को कहते हैं। मैं वो ओह, गूगल में आप जाके देखोगे ना माउंटेन चिकन, तो फ्रॉक की तस्वीर आएगी। मैंने कहा क्या? यार ये फ्रॉक तो मैं नहीं खा सकूंगा, तो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं वो चेंज करके कोई वेजिटेबल ही मंगा लेता हूँ। तो नहीं ये आप लर्निंग हुई, लेकिन दैट वाज फन। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। यही है कि जितने लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन का शौक है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इतने वाइड है, और आप हर जगह हर वक्त सीखते हैं। इस इवन इस पैंडेमिक के टाइम में जिस तरह से हम ग्लोबली क्लोज आए, जहाँ मुश्किलात हैं, जहाँ मसले हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन हुई हैं। कि देखें इस वक्त आप स्कॉटलैंड में, मैं पाकिस्तान में हूँ, और आज हम मिल रहे हैं, एक रीयूनियन हो रहा है। एक पुराना ताल्लुक आपका ग्रहण से इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है। तो बहुत सी चीजें ओपन हुई हैं, और आपकी एडवाइस बड़ी अच्छी कि अपने आप को लिमिटेड ना करें, बड़ा सोचें, सही। बियॉन्ड सोचें। अब आपके पास इंटरनेट मौजूद है, उस पर आप उसको नेगेटिवली यूज करने की जगह बैठ के सिर्फ ये देखेंगे किस मुल्क में क्या क्या चीजें हैं। यू कैन सही गेट बात है। आइडियाज, यू कैन गेट क्रिएटिव, एंड यू कैन ग्रो ऑन। तो सर बात करते हैं अब आपकी ग्रीनिच मेमोरीज की। आपने जिक्र किया कि ग्रीनिच में जब आए तो बड़ा एक अच्छा माहौल बना, एक्सपोजर मिला, कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन साथ साथ दोस्त भी मिले, और बहुत से दोस्त आज भी आपके साथ हैं, इस वक्त मैसेज भी कर रहे हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की, क्योंकि हर स्टूडेंट बड़ी शैतान होता है, कुछ मस्तियां होती हैं, कुछ शरारतें होती हैं, तो आपकी क्या शरारतें थी ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ? मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि मैं वो पहले व्यूअर्स को बता दूं कि हर एंकर का अपना स्टाइल होता है। जैसा वसीम बादामी वो मासूमाना सवाल, मासूमाना, वो कभी मासूमाना नहीं होता। इस तरह उमर खान का एक स्टाइल है। उमर खान को जब कोई टेढ़ा सवाल करना होता है ना, जैसे कि गाना सुनाएं और शरारतें सुनाएं, तो हमेशा वो कहते हैं ग्रीनिश फ्रेटर्निटी कह रही है कि गाना सुनाएं, ग्रीनिश फ्रेटर्निटी कह रही है कि आज उमर मुझे पूरा दिन जो है ना ग्रीनिश फ्रेटर्निटी फोन करती रही, और वो अच्छा। ग्रीनिश फ्रेटर्निटी ने कहा है कि यार उमर से आज गाना सुनना है और अच्छा। उमर से ही आज शरारतें सुननी है। तो वो जब उस पे हम आएंगे तो
मैं आपको बोलूंगा, लेकिन देयर वर फ्यू गुड इंसिडेंट्स। तो एक हमारे वो थे बाजवा साहब, शायद बाजवा, अमेजिंग टीचर, रियली अमेजिंग टीचर। And he was one day, he has lot of knowledge and history. So he was there in the class, and he brought a book. He said, "ये this is Philip Kotler's book, जो भी था marketing book, and this is edition number 4. और जो है वो ये आप you buy this new edition, don't buy the old edition." और फिर वो कहने लगे, यार I remember his first edition was in फलां 19 something. तो क्लास में एक हमारा भोला लड़का भी बैठा था, उसने कहा, सर वो पहली एडिशन वाज इन 1980 जो भी था। तो बाजवा ने कहा, हाँ हाँ बेटा पहली एडिशन। तो वो कहते हैं, सर वो उससे पहले फिर कैसे पढ़ाते थे? तो बाजवा साहब देख के ना तप गए, वो थोड़ा पॉज करके कहते हैं, यार बेटा उससे पहले फिलिप कॉटलर खुद आता था, हार्वर्ड से पढ़ा के ग्रीनविच में वापस चला जाता था। एक एक दूसरा वाकया था, वो भी देयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये था कि हमारी क्लास में एक लड़का था शहजाद अहमद, बड़ा जबरदस्त, बड़ा फ्रेंडली। लेकिन होता है ना कुछ लड़के बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम दिल लगा के, थोड़ा होता है ना कोई मस्ती मजाक भी हम कर लेते थे बैक बेंच पे बैठ के, कुछ होते हैं कि नहीं हमें तो पूरा वक्त पढ़ना है। अब शहजाद की ये थी, जब इकोनॉमिक्स की क्लास उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, वो डॉक्टर कदीर, अमेजिंग टीचर, अनदर अमेजिंग टीचर, वो बड़ा सीरियस लेक्चर देते थे, बड़ा सीरियस। तो हम तो बोर होके थोड़ी मस्ती मजाक करने लग जाते थे पीछे, और बेचारे शरीफ आदमी थे, देखते भी नहीं थे। शहजाद नहीं, शहजाद ऐसे करके देख रहा होता था, और वो हमें कहता चुप करो, मुझे आवाज नहीं आ रही, ये नहीं करो। तो हम क्या करते थे, वो ये बैठे हुए हैं, अब शहजाद सामने देख रहा है टीचर को, टीचर पढ़ा रहा है, हम ना नीचे से पकड़ के उसकी कुर्सी पाँव से कुर्सी टर्न कर देते थे। अब टीचर सामने पढ़ा रहा है, शहजाद दीवार की तरफ देख रहा है। अच्छा, फिर शहजाद थोड़ी कोशिश करता था कि मैं ऐसे करके वापस करूं, हम नीचे पाँव रख देते थे, शहजाद कर नहीं पाता था। हो अब एक जाते थे। क्लास हो रही थी, टीचर पढ़ा रहा है, और शहजाद जो है वो ऐसे करके, क्योंकि वो कहता था यार मैं कान से तो सुन ही रहा हूँ ना, तो दीवार देख रहा होता था और कान से सुन रहा होता था, और हम वो नीचे से टांग रख देते थे कि वो कोई हिला नहीं पाए। एक और क्लास में, इंग्लिश क्लास में होते थे बोगरा साहब होते थे, अमेजिंग टीचर अगेन, लेकिन वो थोड़े एज के बड़े थे। वो उसमें दो हमारे क्लास फेलो थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने बड़ी वो शरारत थी। उसमें उन्होंने क्या किया कि यार ऐसा करते हैं कि हम लिपसिंग करते हैं, कि एक बंदा खाली लिप्स हिलाएगा और दूसरा बंदा ना पीछे से वो बोलेगा। तो टीचर पता नहीं चलता था, बड़े शरीफ आदमी। तो एक दफा क्या हुआ कि वो शुरू हुई, तो वो बंदा सिर्फ लिप्स हिलाने लगा, पीछे से बोलने लगा। लेकिन वो उसने बदमाशी क्या की पीछे वाले ने, कि वो लिप्स हिलाता रहा, वो खामोश हो गया। तो बोगड़ा साहब कह रहे हैं कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वो कह रहा है ऐसे ऐसे लिप्स हिला रहा था कि अब वो बीच में फंस गया, क्योंकि उसने तो ऐसी बड़ी बहुत ही ज्यादा शरारतें की। एक दफा बाजवा साहब के साथ हुआ था, वो अपना एक और हमारा दोस्त था बेचारा, उसको भोला कहते थे। बाजवा साहब बड़ी स्टोरियां बताते हैं, उनका नॉलेज बड़ा था। तो बाजवा साहब आए थे, वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही थी कि जी फलां एडवर्टाइज, फलां प्रोडक्ट। तो शैम्पू की एक बात है कि ये शैम्पू बेहतरीन है, इसमें सिर्फ एक मसला है कि ये थिक नहीं है, बहुत ही थिन शैम्पू है। तो फिर बाजवा साहब ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि इसमें एक हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल ये है कि आप जो है वो उसमें अगर थोड़ा नमक डालें तो वो शैम्पू थिक हो जाता है और वो ज्यादा असर होता है। तो उसमें अच्छा, ये बाजवा साहब है, वो भोला बेचारा दोस्त बैठा हुआ था, वो कह रहा है कि सर 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 व्हाट डू यू हैव टू पुट द सॉल्ट इन द शैम्पू? बाजवा साहब होके, बाजवा साहब got frustrated or whatever, look, he used to control, उसने कहा no no बेटा, put the salt on your head and shampoo in your mouth. तो वो हंस हंस के ना, it was really क्या बात होती है। आपको सोहेल अमीन साहब कह रहे हैं कि नाम ले लो साईं, कोई टेंशन नहीं है। सोहेल जो ना हमेशा मरवाता है। सोहेल मैं वो फिर आके वो फिर मेरी बातें आपको बताएंगे। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, दे विल कम एंड टेल यू ऑल अबाउट मी। लेकिन सर उस वक्त आप सेशन में तो नहीं होंगे ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। नहीं, सही आप बात है। नॉमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए, आप नॉमिनेट करेंगे तो आगे आपको वो लोग सेशन पे भी दिखेंगे फिर। बिल्कुल। तो नाम नहीं बता रहे आप फिर। नाम यार वो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, वो बेचारे उनके बच्चे बीवी वाले हैं, वो थोड़ी उनकी इज्जत है, तो उनको थोड़ी इज्जत इज्जत रहने ऐसे देते वाकयात हैं, ऐसे वाकयात हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट। वैसे आपस की बात है कि जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतनी कलरफुल लाइफ होती है, इतनी आपकी शरारतें होती हैं, तो लेटर ऑन जाके आपके पास किस्से वाकयात बड़े मजेदार होते हैं सुनाने के। एंड दीज आर द गोल्डन मेमोरीज, यू नो, व्हेन यू लुक बैक एट देम, तो जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जो खुशी हंसी आती है,
I think it is tremendous. और as much as I'm loving this conversation, sir, हम एंड की तरफ अब जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व आज हमारा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंटली हमने देखा कि जब इंसान इतना ट्रैवल करता है, और सिर्फ ट्रैवल फॉर द सेक ऑफ वेकेशन नहीं, आप वहाँ डिफरेंट मुल्क में रहें, वहाँ काम करें, तो कितना वेरिएशन होती है कल्चर में, सोशल नॉर्म्स में, बिहेवियर में, लैंग्वेज में। तो एक सवाल सर आखिरी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत से मुल्क हैं वहाँ इंग्लिश या उर्दू नहीं बोली जाती, यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। नॉर्वे में लैंग्वेज का बड़ा है, और यूरोप की बहुत कंट्रीज में है। तो माशाल्लाह से आपने कितनी लैंग्वेजेस अब सीखी हैं बोला? लैंग्वेज मैं इतनी ज्यादा तो नहीं सीख पाया। आई स्पीक इंग्लिश, उर्दू, somewhat फ्रेंच, not really fluent. Sindhi to is my mother tongue. So I wanted to learn language. Honestly, I really wanted to learn, enjoy, but I never got time. Office mein it was so busy, especially when you're an expatriate. Then you have to really work almost 7 days a week. So ट्रू। I couldn't get a chance to learn more languages. लेकिन मोर ओवर रह है कि ऑफ कोर्स जो बेसिक है वो चीजें समझ तो आने ही लगी होंगी जो लोगों की लैंग्वेजेस होती हैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट लर्निंग कर्व। तो हाँ, नहीं इतना तो बोल लेते थे कि you know जो बेसिक, hello, hi, greetings and food and wear this and wear that, so we could speak that much. डेफिनेटली सर, एंड इंडीड इट वाज अ ट्रू ऑनर टू हैव यू टुडे। और बहुत कुछ सीखा और बड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ कि हम भी जाएं, ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें, और एक्सपीरियंस जो है दुनिया के बाहर, पाकिस्तान के बाहर बियॉन्ड क्या कुछ है वो हासिल करें। तो सर जाने से पहले आपका आज ग्रेनिच लाइव सेशन पे एक्सपीरियंस कैसा है? Umar, really good experience. Honestly, jokes aside, you have done an excellent idea. This idea is amazing. And for example, these friends you were taking, like Sohail and others' name, I have not spoken to them for many years. Naufal, I was watching your interview with Naufal yesterday, and again, it was so much fun. So amazing idea, Umar, but more than that, amazing execution. All your, वो पूरी आपकी जो सेटिंग होती है ना, हर वक्त अब मैंने देखा है कि बंदा कोई इज टॉकिंग समथिंग सैड, यार आई लॉस्ट माय जॉब, आप फिर भी यू आर स्माइलिंग, क्योंकि आपको वो ये एंकर की वो है ना कि यू नीड टू पुट अ स्माइलिंग फेस एंड अ पॉजिटिविटी। तो अमेजिंग एग्जीक्यूशन। टू मैं आपको अगर एडवाइस दे सकूं, हर चीज में देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एक तो ये है कि यू शुड असाइन अ नेम टू द शो, whether that is my Greenwich life, a coffee with Umar, a date with Umar, an evening with Umar, या जो भी आप वो कर लें, you need to give a name, because then वो फिर वो brand establish होता है, brand develop होता है, and you never know कितना बढ़ जाए। जी Second advice I'll give it, you, I think the future is for the students also, you give some international flavor to this. So, for example, get two students from Greenwich University, I'll get you two students from, say, Aberdeen University, and a joint session to say, how do you do this in your part of the world? How do you do this? When you do that, then there's more interest, more engagement, more people will watch you shows. So Greenwich also, I think, because again, Kamal Saab and Madam Seema, they created Greenwich idea where there were no such universities in Pakistan at that time, and that was their really unique selling proposition. Now the time has changed, so Greenwich also needs a competitive advantage over your competitors and others. So if Greenwich will also gain a lot if bring people from international arena. Or obviously you have to keep it light and serious, तो फिर कोई नहीं, no one will be interested. Lekin I think a brand name, whatever name you decide, and some session giving it some international flavor, I think it'll be a lot of fun. of course sir, we'll definitely use this advice to improve ourselves. Secondly, एक comment और है हमारे साथ यहाँ। It was a real pleasure to see and listen to you. You have brought good memories back. Stay blessed and hopefully see you sometime in near future. Inshallah. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और ये एक चीज आपके लिए कमेंट आया था, आपने कहीं मुझे बीच में फंसा दिया था, लेकिन मैं बच गया उससे। नहीं उमर, ये पूरी ग्रीनिच फ्रेटर्निटी ने कहा कि आज उमर ने गाना सुनाना है, तो सर आपने बहुत मतलब मजे लिए सबके। आप you अगर you always ask you always ask your guests to sing, so now you have to sing one song. I will not let you go. I won't go without hearing you. प्रॉब्लम ये सर कि जो बड़ी मुश्किल से 2 महीने में व्यूअरशिप बनी है ना, वो आज के बाद खत्म हो जाएगी। I think you should at least say two sentences.
चले तो फिर ये सारे जितने सुनने वाले हैं वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आई एम टेरेबल सिंगर, मैं बोल सकता हूँ अच्छा लेकिन मैं गा नहीं सकता हूँ, तो प्लीज इसकी वजह से हमारे फ्यूचर के गेस्ट जो सेशन है वो देखना ना छोड़िए, क्योंकि हमारे गेस्ट बड़े अच्छे लोग होते हैं। सो हियर गोस क्या गाऊं? ओके। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। चल। ये तुम कौन है, ताकि उसको कहें हम कि आपसे और गाने सुने। इसमें तुम कौन था, कौन सर थी, या सर मजाक कर ढूंढ रहे रहे हैं? हो, आप तो माशाल्लाह इतने सारे मुल्कों में हो, तो आप ही ढूंढने में कुछ मदद कर दें। मजाक नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं मुझे बहुत खुशी हुई थी वो सुन के कि यार आपके वालिद साहब, आपने उस शो में बात की, एंड ही हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीनिच ऑनेस्टली। और बाकी सब भी, मुनीर, एहतशाम होते थे, समंथा, टोनी, व्हाट अ ग्रेट टीम। यही तो आई थिंक कमाल साहब और मैडम सीमा और सईद साहब की वो थी कि they really brought best teachers and best staff, and what a teamwork. So really indebted to Greenwich for such a great experience. Indeed sir, and that is why we call ourselves Greenwich family। के देखें आज आप कितने सालों बाद हमारे साथ आए, और वो डिस्टेंस की वजह से कोई दिलों में डिफरेंस नहीं आया, अगर दिलों में कोई डिस्टेंस नहीं आया। आज भी ऐसा लग रहा है कि कल की बात थी, व्हेन यू स्टेप्ड आउट ऑफ ग्रेनिच एज अ ग्रेजुएट। तो ये वो मोहब्बत है, ये वो एक बॉन्ड है जो ग्रेनिच का सारे स्टाफ, सारे स्टूडेंट से हमेशा रहता है। मैं भी ग्रेनिच का ही अलमनाई हूँ, एंड आई फील दैट ओनरशिप विद माय कैंपस के आज भी मैंने स्टेप इन, तो मुझे वो सारी मेमोरीज आती हैं। आई एम श्योर कि आपको भी आज हमने जो पिक्चर्स आपकी ग्रेजुएशन की दिखाई या पहले की दिखाई, तो वो सारा एक फ्लैशबैक बन के सामने आ गया। और दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट व्हेन इट कम्स टू एन इंस्टीट्यूशन which means more than home to you। Absolutely, it's very nostalgic, to be honest, Umar, to talk about your uni, and I think that's the case for everyone. But Greenwich, with the way Greenwich started and Greenwich growed, and I think what a change. I think again, Madam Seema and Said Saabko, I think they don't even realize how many lives they have impacted positively. They have changed so many lives, because when you educate one individual, you are educating the entire family. And I and think honestly, and generations to come, in fact। generation to come. So I think the prayers they've got because of doing all that, I think, mashallah, that's why they're doing so well. So really great work, Greenwich team, and keep it up. Thank you so much, sir. And indeed, we'll have another session sometime soon in future. And keep doing the wonderful job that you're doing. और हमारे जितने young students हैं उनको आपने mentor करना है when it comes to the foreign exposure and all, क्योंकि आप लोग हमारे असासे हैं, और हमारी जो younger generation उनको आप लोगों ने guide करना है। No, thank you, Umar. Always my pleasure. Always available for any contribution I can make to Greenwich or its students. Thank you so much, sir. Stay safe and Thank you. keep smiling. Allah Right. Hafiz. Allah Hafiz. So you heard Mr. Ghulam Ali Talpur, और उनकी पूरे जो प्रोफेशनल करियर रहा, हमने देखा कि 12 मुल्कों में वो रहे, वहाँ काम किया। हर मुल्क का एक डिफरेंट कल्चर, कुछ बहुत ही मज़ेदार वाक़े उन्होंने सुनाए, कुछ बड़े मज़ाहिए वाक़े सुनाए, और ख़ासतौर पे हम में से कोई अगर कहीं बाहर ऐसे मुल्क में जाता है और हमारे साथ ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए, तो एटलीस्ट ये सेशन देख के मुझे ये पता चल गया है कि मैं कौन से मुल्क में जाऊंगा तो मुझे आदमियों से किस तरह से मिलना है, और कौन से मुल्क में जाके मुझे औरतों से किस तरह से मिलना है। तो दैट्स वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन। एंड मोर ओवर एक बड़ी अच्छी बात अली भाई ने हमसे की कि अपने आप को लिमिट ना करें। अपने आप को सिर्फ जिस शहर में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, ये दुनिया नहीं है, दुनिया इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। व्हेन यू गो आउटसाइड पाकिस्तान, और इवन अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली है, आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं जो दुनिया के सक्सेसफुल मुल्क हैं वो क्या अप्रोच है उनकी, उनके क्या माइंडसेट्स हैं, उनकी क्या चॉइसेस हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। और जब आप अपना होराइजन वाइडन करेंगे, दैट इज व्हेन यू विल लर्न। वहां से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वहां से आपके जहन खुलेंगे, वहां से आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एवरीथिंग विल हैव एन इम्पैक्ट। एंड फॉर दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप वर्किंग ऑन सेल्फ, ऑन योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को दिन ब दिन बेहतर करें, किसी और से कंपटीशन ना करें, खुद से कंपटीशन करें। जहां कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं, और कल आप क्या होना चाहते हैं। ट्राई एंड मेक गोल्स इन योर लाइफ, और भले 1 सेंटीमीटर जिंदगी में आगे बढ़े टूवर्ड्स योर गोल,
but keep moving forward. Never give up and always stay positive. ये कोरोना का एक बड़ा मुश्किल वक्त है. These are testing times. यहाँ लोगों के कैरेक्टर, लोगों के जो सारी उनकी इंटरनल हैं चीज़ें सब टेस्ट हो रही हैं. It's a high test of faith as well. So just hang in there. Inshallah, everything will get better with time. All we have to do is stay positive, make most of this time, stay positive, stay productive, and keep smiling. तो ये था हमारा आज का सेशन, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के दिन. कल हमारे साथ होंगे एक और गेस्ट, एक और सेशन. आप हमेशा अपने फीडबैक में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किन गेस्ट को फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आप शो सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, and we'll definitely work on that. So until next time, take care of yourself, keep smiling, stay positive, stay safe, and Pakistan Zindabad.